بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم سماجی سائنس کے سبق نمبر 7 بھارت جائے وقوع، سرحد، رقبہ اور طبعی ساخت، یہ ہمارا سبق نمبر 7 ہے سوشل سائنس، سماجی سائنس میں۔ اس سبق میں ہم دیکھیں گے جو ہمارا دیش ہے، جو ہمارا ملک ہے بھارت، انڈیا، اس کا جائے وقوع، اس کی سرحد، اس کی بارڈرز کہاں کیسی ہے، کن کن کنٹریز سے لگ کر کے ہے اور کن کن ممالک سے لگ کر کے ہے، اور بھارت جو ہمارا دیش ہے اس کا رقبہ کتنا ہے، یعنی ہمارے پاس زمین کتنی ہے، اور اس کی طبعی ساخت۔ طبعی کا مطلب ہوتا ہے قدرتی ساخت کا مطلب ہوتا ہے بناوٹ، قدرتی بناوٹ، کہ بھئی قدرتی بناوٹ کیسی ہے بھارت کی، ہے نا۔ تو بھارت کا جائے وقوع، اس کی سرحد، اس کا رقبہ اور طبعی ساخت کے بارے میں آج ہم معلومات حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ جماعت ششم میں آپ گجرات کے جائے وقوع، سرحد، رقبہ، علاقہ اور طبعی ساخت کے متعلق سیکھ چکے ہیں۔ اب ہم بھارت کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ دیکھو یہ میپ ہے ایشیا کا۔ ہم جس کانٹیننٹ یا جس بر اعظم میں رہتے ہیں اس کا جو ہے یہ میپ ہے، اس کا نقشہ ہے۔ اس میپ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا دیش ہے بھارت، ٹھیک ہے۔ اس کے پڑوس میں دیکھو یہ بنگلہ دیش ہے نا، یہاں پر سری لنکا، یہاں پر پاکستان، یہاں پر میانمار، ٹھیک ہے، یہاں پر بھوٹان، یہاں پر تبت، ٹھیک ہے، یہ چین۔ تو یہ سب ہمارے جو ہے نیبر کنٹریز ہے، یہ سب ہماری جو ہے پڑوسی کنٹریز ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پورا ایشیا کا میپ ہے۔ ایشیا کے اندر جتنے ممالک آتے ہیں جیسے روس ہے، منگولیا ہے، چین ہے، قزاقستان ہے، ازبیکستان ہے، ترکستان ہے، ایران ہے، اسلام آباد پاکستان ہے، بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، میانمار ہے، برابر۔ یہ سب جو ہے ہمارے ایشیا کی کنٹریز ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں ہم۔ یہاں دیے ہوئے نقشے کی مدد سے بھارت کے متعلق معلومات کے ذیل کی خالی جگہ پر کیجیے۔ بھارت 8.4 شمال ارض البلد سے 37.6 شمال ارض البلد تک، 68.7 مشرق طول البلد سے 97 درجہ اور 25 انچ طول البلد تک پھیلا ہوا ہے۔ بر اعظم ایشیا جائے وقوع۔ بر اعظم ایشیا کا جائے وقوع جو مشرق میں ڈیش واقع ہے۔ تو مشرق کی کنٹریز جو ہم کو بتانا ہے، اس میں مشرق کی کنٹریز کون کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ مشرق کی کنٹریز میں بھارت ہے، میانمار ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، یہ سب۔ مغرب میں کیا ہے بھئی، مغرب میں یورپ ہے، جو روس وغیرہ آتا ہے، روس ہے، ترکستان یا ترکی جس کو بولتے ہیں ابھی۔ شمال میں جو اس کے اوپر کی طرف جو ہے وہ قزاقستان ہے، منگولیا ہے، اور جنوب میں جو ہے اس کی نیچے کی طرف جو ہے وہ سری لنکا ہے، ملیشیا ہے نا، انڈونیشیا ہے، تھائی لینڈ ہے، یہ سب۔ تو ان کنٹریز کے نام یہاں پر لکھنا رہے گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں بھارت کا سیاسی رقبہ۔ اوپر جو ہے یہ لداخ، یہاں پر لداخ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ کہ جموں کشمیر، پھر پنجاب، پھر اتراکھنڈ، ہریانہ، راجستھان، اتر پردیش، ہے نا، یہ بھارت کا ہمارا۔ یہ گجرات، ہم جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں یہ گجرات، ٹھیک ہے، یہ ایک ریاست، اس سے لگ کر کے مہاراشٹر، پھر یہ مدھیہ پردیش اور یہ راجستھان۔ ایسے یہاں پر پوری ٹوٹل جو ہے ریاستوں کا میپ، نقشہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں شمال میں کشمیر سے لے کر جنوب میں کنیا کماری تک۔ اب کشمیر سے کنیا کماری تک سے کیا مطلب ہوا، دیکھ لیتے ہیں ابھی۔ یہاں پر یہ جو ہے کشمیر ہے، ٹھیک ہے، یہ کشمیر کا حصہ ہے۔ یہاں سے لے کر کے نیچے یہاں تک جو ہے کنیا کماری ہے تمل ناڈو میں، یہاں تک۔ تو یہ شمال میں کشمیر سے لے کر جنوب میں کنیا کماری تک لمبائی تقریباً 3214 کلومیٹر ہے، جبکہ مشرق میں اروناچل سے لے کر مغرب میں دوارکا تک کی چوڑائی تقریباً 2933 کلومیٹر ہے۔ بھارت کا ارضی رقبہ تقریباً
32,87,263 है। लिहाजा जहाँ तक रकबे का ताल्लुक है, दुनिया के मुल्कों में भारत 7वें मुकाम पर है। भारत की शक्ल शुमाल में तंग, दरमियान में चौड़ी और जुनूब में फिर तंग होती जाती है। भारत में 28 रियासतें, एक कैपिटल स्टेट दिल्ली और 7 मरकज़ के तहत इलाके वाक़ है। ठीक है, आगे देखते हैं तबई साख्त। तबई साख्त का मतलब कुदरती बनावट कैसी है भारत की, वो देखते हैं। तबई साख्त यानी कि ज़मीन की सतही बनावट। भारत की तबई साख्त एक जैसी नहीं है। उसकी कई हिस्सों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो कई हिस्सों में वसी हमवार ज़रख़ेज़ मैदान है, तो कई हिस्सों में बंजर रेगिस्तान है, कई हिस्सों में साहिल समुंदर है, तो कई हिस्सों में इर्तिकाई इलाके हैं। तबई साख्त के एतबार से भारत को 5 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है: शुमाली पहाड़ी इलाका, शुमाल का मैदानी इलाका, वस्ती और जुनूबी भारत का इर्तिकाई इलाका, समुंदरी किनारों के तंग मैदानों का इलाका। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैप में बताया गया है, पहाड़ी इलाका जो है वो चॉकलेट कलर में दिया गया है, जो कश्मीर है ना, इधर जो है अपने बंगाल वगैरह ये सब जो है पहाड़ी इलाका ज़्यादा है। मैदानी इलाका जो है ये गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है ये, और इर्तिकाई इलाके में ये महाराष्ट्र है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, ये सब जगह है। ठीक है, आगे देखते हैं। शुमाल का पहाड़ी इलाका। हिमालय किसी एक पहाड़ का नाम नहीं है, बल्कि 3 पहाड़ों का पहाड़ी सिलसिला है। उसे हिमालय का कोहिस्तानी सिलसिला कहते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा कोहिस्तानी सिलसिला है। शुमाली पहाड़ी इलाके के 2 हिस्से, हिमालय का कोहिस्तानी सिलसिला, हिमालय के मशरक़ी टीलों का इलाका, चीन के जानिब वाक़ पहाड़ी सिलसिले को महा हिमालय कोहिस्तानी सिलसिला, बीच में वस्ती हिमालय कोहिस्तानी सिलसिला, और भारत की जानिब वाक़ कोहिस्तानी सिलसिला शिवालिक के टीलों के नाम से पहचाना जाता है। हिमालय कोहिस्तानी सिलसिला, हिमालय कोहिस्तानी सिलसिला देखते हैं। थोड़ा सा आगे आ गए हम। भारत की माउंट गॉर्डन हेस्टिंग K2 चोटी 8,611 मीटर बुलंद है, जो काराकोरम के कोहिस्तानी सिलसिले में वाक़ है। हिमालय के नेपाल में वाक़ दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। इसके अलावा भारत में वाक़ पहाड़ी सिलसिले में कंचनजंगा 5,898 मीटर है, नंदा देवी 7,817 मीटर और बद्रीनाथ 7,138 मीटर वगैरह बहुत बुलंद चोटियाँ हैं। हिमालय की मशरक़ी टीलों का इलाका। हिमालय के मशरक़ में वाक़ इलाका का सबसे बड़ा टीलों का हिस्सा है। यहाँ पतकुई और लूसाई का पहाड़ी सिलसिला और जुनूबी हिस्से में मशरक़ और मगरिब में फैले हुए गारो, खासी और जेतिया और नागा टीले वाक़ है। ये टीले बहुत ही ऊँचे नहीं हैं। शुमाल का मैदानी इलाका। शुमाल के पहाड़ी इलाकों के जुनूब में वाक़ मैदानों की तश्कील हिमालय से निकलने वाले बड़े दरियाओं और उनसे मिलने वाली नदियों की चिकनी मिट्टी से हुई है। ये मैदानी इलाके शुमाल भारत के बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है, इसलिए उसे शुमाल का मैदानी इलाका भी कहते हैं। इस मैदानी इलाके का शुमार नदियों से बने दुनिया के बड़े मैदानों में होता है। नदियों, दरियाओं के हमवार मैदानों का ये इलाका भारत का सबसे ज़्यादा खुशहाल और बहुत गुंजान आबाद इलाका है। अब हमें यहाँ क्या करना है, भारत हिमालय से निकलने वाली दरियाएँ उनके नाम लिखना है। तो भारत से हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी दरिया है, या आप मैप में देख करके जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया गया है, हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ है वो ब्रह्मपुत्र है ना, और अपने ब्रह्मपुत्र है, झेलम है, रावी है, ये सारी नदियाँ जो है वो हिमालय से निकलने वाली है। भारत की अहम झीलें। अब भारत की अहम झीलें कौन कौन सी है? चिल्का झील है, चिल्का। इसके अलावा यहाँ देखेंगे हम, ये गोदावरी, तापी, नर्मदा, साबरमती, और ये सारी जो है ये नदियों के नाम है।
और सांबर, लोनी और चीन, बेनू, कीन और सून, ये सब जो है पेनगंगा, ये सब भारत की अहम झीलें हैं। तो इन सब के नाम आपको जो है यहाँ पर लिखना रहेगा। आगे देखते हैं वस्ती और जनूबी भारत का इर्तिकाई इलाका। दरियाओं का हमवार मैदानी इलाकों के जुनूब में वस्ती और जनूबी भारत का इर्तिकाई इलाका वाक़ है। ये इलाका उल्टे मुसल्लस की शक्ल में फैला हुआ है। जनूबी भारत का ये अर्ज़ी इलाका तंग और दोनों जानिब से पानी के ज़ख़ीरों के दरमियान वाक़ है, इसलिए वो जज़ीरा नुमा कहलाता है। ये इलाका बहुत कदीम और सख्त चट्टानों से बना हुआ है। इस इर्तिकाई इलाके के दरमियान दरियाए नर्मदा और सोन की वादियाँ मौजूद है, इसलिए ये इलाका अब दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। शुमाली हिस्सा मालवा का इर्तिकाई इलाका और जनूबी हिस्सा दक्कन का इर्तिकाई इलाका कहलाता है। इस इर्तिकाई इलाके की ज़मीन मैदानी इलाकों की ज़मीन के मुकाबले में ज़्यादा ज़रख़ेज़ नहीं है, फिर भी वो काली होने की वजह से कई इलाकों में अच्छी खेती होती है। यह इर्तिकाई इलाका भारत का मादनी ज़खायर का इलाका है। मादनी ज़खायर क्या होता है, जैसे भाई लोहा, तांबा, पीतल है ना, ये सारी चीज़ें जो है मादनी ज़खायर है। इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर जो है वो पेट्रोल वगैरह भी निकलता है भारत में, ठीक है। तो ये सब हमारी मादनी ज़खायर है। उसके बाद देखते हैं नंबर 4, साहिली तंग मैदान। भारत के 3 जानिब समुंदरी साहिल वाक़ है। ये समुंदरी साहिल तकरीबन 7,517 किलोमीटर तवील है। 7,517 किलोमीटर तवील है। इस समुंदरी साहिल में तंग मैदान वाक़ है। इन मैदानों की जानिब समंदर है तो दूसरी जानिब जुनूब का इर्तिकाई इलाका है। भारत के मशरक़ी साहिल में वाक़ मैदान को मशरक़ी साहिल का मैदान कहते हैं। ये साहिली इलाके माहीगिरी की सनत के लिए बहुत मशहूर है। माहीगिरी क्या होता है, यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है माहीगिरी। माहीगिरी जो है मछलियों का पालन करना, मछलियों की अफजाइश करना, है ना। ये जो है माहीगिर या मछलियों को पकड़ करके बाज़ारों में सेल करना, ये माहीगिरी की सनत है, ठीक है। इन मैदानों के समुंदरी साहिलों में चेन्नई, पौंडीचेरी, मछली और पट्टनम, विशाखापट्टनम जैसे बड़े शहर वाक़ है, जो भारत की मशहूर बंदरगाहें हैं। भारत के मगरबी साहिल में वाक़ मैदानों को मगरबी साहिली मैदान कहते हैं। ये मैदान मशरक़ी साहिल मैदान के मुकाबले में तंग है। इस मैदान का कुछ हिस्सा काली मिट्टी और कुछ हिस्सा काली चिकनी ज़रख़ेज़ मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए ये मैदान बड़ा ज़रख़ेज़ है। मगरबी साहिल के मैदान ज़राए नक़ल व हमल और माहीगिरी के लिए मशहूर है। इन मैदानों में कंडला, मुंबई, मैंगलोर, कालीकट, तिरुवनंतपुरम वगैरह बड़ी बंदरगाहें और बड़े शहर वाक़ है। जज़ीरा, 4 जानिब से पानी घिरे हुए ज़मीनी हिस्से को जज़ीरा कहते हैं। जज़ीरा किसे कह रहे हैं कि भाई जहाँ पर 4 जानिब पानी से घिरे हुए हिस्से को, ज़मीनी हिस्से को जज़ीरा कहते हैं। भारत के मगरबी जानिब बहर अरब में लक्षद्वीप और मिंकुए के जज़ीरा वाक़ है, जिसका इंतज़ामी मरकज़ क्यूरती है। भारत के मशरिक़ जानिब खलीज बंगाल में इंदोमार और निकोबार जज़ीरा वाक़ है, जिनका इंतज़ामी मरकज़ पोर्ट ब्लियर है। रेगिस्तानी इलाका अरावली पहाड़ी सिलसिले के मगरिब में वाक़ राजस्थान का मगरबी हिस्सा रेगिस्तान है। यहाँ की ज़मीन में रेतीली है। रेगिस्तान की आबहवा खुश्क और गैर मुतदिल है। अमूमन यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है, 20 सेंटीमीटर से भी कम। लिहाजा इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा खुश्क, वीरान और उजाड़ है। पानी की तकलीफ़ और ज़रूरियात ज़िंदगी की हमेशा किल्लत की वजह से यहाँ आबादी बहुत कम है। यहाँ खजूर के दरख्त और ऊँटों के काफ़िले नज़र आते हैं। राजस्थान के शुमाल हिस्से के रेगिस्तान में दरियाए सतलज से जारी इंदिरा गांधी नहर से आबपाशी की जाती है, जिससे रेगिस्तान का शुमाली इलाका हरा भरा हो गया है। यहाँ खेती की तरक्की भी अच्छी हुई है। कच्छ का रेगिस्तानी इलाका राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके से मुख्तलिफ है। गुजरात में वाक़ कच्छ का रेगिस्तानी खारी ज़मीन से पटा पड़ा है, जो बड़ा रेगिस्तानी और छोटा रेगिस्तान कहलाता है। ऐसा नज़र आता है कि जैसे ज़मीन ने सफ़ेद चादर ओढ़ कर रखी हो। दुनिया में इस किस्म का रेगिस्तान सिर्फ कच्छ में ही वाक़ है।
ये था हमारा 7वां सबक समाजी साइंस 7वीं जमात के लिए। भारत का जो है जाए वकूफ़, उसकी सरहद है ना, और उसका महल वकूफ़। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। अब हम इसकी खुद आमोज़ी देखेंगे कि भाई इस सबक में क्या खुद आमोज़ी दी गई है। ठीक है, तो पहले देखते हैं। झेल के सवालों के जवाब दीजिए। जज़ीरा कैसे वजूद में आए? तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। सारे सवाल के जवाब आपको वीडियो में देखने पर मिल जाएगा। मैं आपको सवाल पढ़ करके सुना देता हूँ। आपको इन सवालों के फिर जवाब इस वीडियो में से ढूंढ कर या अपनी किताब में से ढूंढ करके उसका वीडियो बना करके फिर अपने ग्रुप में जो है व्हाट्सएप करना है। ठीक है। दूसरा सवाल है, रेगिस्तानी इलाकों में बहुत कम आबादी क्यों होती है? ठीक है, रेगिस्तानी इलाकों में क्यों आबादी कम होती है भाई? ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलियात कम होती है, जैसे पानी की किल्लत होती है ना, और बहुत ज़्यादा खुश्क होती है। फिर वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती, फिर वहाँ नदियाँ नहीं होती, इसके लिए वहाँ पर जो लोग बसते नहीं और वहाँ पर जो आबादी कम होती है। ठीक है। तो उसके बाद जो शुमाल के मैदानी इलाकों में आबादी गुंजान है, हाँ या नहीं, क्यों? अगर शुमाल के मैदानी इलाकों में गुंजान आबादी यानी ज़्यादा आबादी अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको इसकी वजह बताना है। सवाल नंबर 4 है, समुंदरी साहिलों पर वाक़ बड़े शहरों की तरक्की क्यों हुई? भाई मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है। इन शहरों की जो तरक्की क्यों हुई है आपको ये बताना है। ठीक है। नंबर 5 है, अगर भारत की तबी साख्त मुख्तलिफ नोक ना होती तो? अगर भारत की जो कुदरती साख्त है उसके अंदर अलग अलग चीज़ें नहीं होती तो क्या होता, तो आपको बताना है। भाई मादनी ज़खायर नहीं मिलते, ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है, सहूलियात ज़िंदगी जो है वो कम हो जाती है ना। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है, जो अक्सर ममालिक के अंदर देखने मिलती है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2। झेल के बयानात गलत है या सही बताइए। रकबे के एतबार से हमारे मुल्क का मुकाम दुनिया में 7वां है। ये जुमला सही है या गलत है ये आपको बताना है। जैसा कि हम ये इस वीडियो में देखेंगे तो हमको आप लोगों को पता चलेगा कि भाई दुनिया में हिंदुस्तान का नंबर 7वां है रकबे के लिहाज से। रकबा मतलब भाई हमारे पास ज़मीन कितनी है ना। तो हमारे पास 32,87,263 किलोमीटर जैसी जितना जो है वो इतनी जो है ज़मीन हमारे पास मौजूद है। तो ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा है, भारत में वाक़ हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ये गलत है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। हमारे पास जो चोटी है वो कंचनजंगा है। उसका तीसरा है, वस्ती और जुनूबी भारत के इर्तिका इलाके भारत के मादनी ज़खायर कहलाते हैं। सही है गलत आप वीडियो देख करके बताएं। भारत से ख़त सरतान गुजरता है। नंबर 5, कच्छ का रेगिस्तान बहुत ज़्यादा रेतीला है। बिल्कुल गलत जुमला है। कच्छ का रेगिस्तान जो है वो रेतीला तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर जो है नमक पूरा लगा रहता है और एक सफ़ेद चादर जैसी चढ़ी हुई होती है, ऐसा लगता है। तो जो राजस्थान का जो रेगिस्तान है वो बिल्कुल रेतीला है कच्छ की बनिस्बत। ठीक है, आगे देखते हैं। बस ये है, यहाँ पर हमारा सबक जो है वो पूरा होता है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट आप लोग को दिया गया है इसमें कि भारत की किसी एक रियासत की बात तस्वीर मालूमात कुतुब खाने या इंटरनेट की मदद से जमा कीजिए। तो हम इस प्रोजेक्ट में क्या करते हैं कि हम रियासत गुजरात, हम जिस स्टेट में रहते हैं, जो रियासत में रहते हैं, वो रियासत की पूरी मालूमात, उसका नक्शा है, उसमें कितनी नदियाँ है, कहाँ पर पहाड़ है ना, और कितनी झीलें है, समझ में आ रही बात, और कहाँ पर कोयले की खान है, कहाँ कितनी खेती बाड़ी में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर जो है ज़्यादा उगाई जाती है। तो सारी चीज़ों का एक मैप बनाकर एक मालूमात लिख कर के आप लोग को इसी ग्रुप में व्हाट्सअप करना है। ठीक है, चलो थैंक यू।